रोमांस नाइस। रिजर्वेशन इन जनरल मैं अग्री नहीं करती हूँ। मैं गूगल मैप से भी गलत रास्ते बताती हूँ। मुझे ऐसा फील आया कि यार एक बार मुझे ऐसी एंट्री मारनी है। इन जनरल योर चॉइसेस को हमने बहुत जेंडर बायस कर दिया। अ टीनेज बॉय committed suicide because he was bullied in school, and you are a terrible person if you make somebody feel bad about being excited about something. कुछ भी कर लो तुम, you are so quick to point fingers at others, ठीक है? So that's what feminism is, कि you get to do everything and you're not questioned. So why is it questioned when it's a female? You cannot give the control of your life to somebody else. And it is always nice to be good with someone because it does not have a drawback. Show me your company and I will tell you who you are. What's the point if you are going to compromise on who you are and feel suffocated and sad only to make the other person happy? When both of them are really understanding of each other and when you respect each other's boundaries, that person likes a part of you that is not even real. आप नहीं ये कर सकते कि assume कर सकते कि सामने वाले को पता होगा. Draw a line to your past. I think love is not all unicorns and rainbows. It's also like the dark and deep days. Life में low maintenance friendships बहुत important होती हैं. I don't know why, but I love the fact कि मेरे वजह से कोई स्माइल कर. He literally उसने बहुत बड़ा मैसेज डाला था, पता है? I used to create motivational stories. People are like बस ना कितना motivation देगा. You are doing good and you are confident. You shouldn't stop. हम सोसाइटी को unnecessary control दे देते हैं over ourselves. Exactly. I have this thing where I think I can fix people. बहुत बुरी. Same, सच्ची. Hi guys, welcome back to my channel. This is Harshita Purohit, and for the first time, luckily, there is a girl on my podcast, and we are going to discuss about just general Just stuff. life in general. Life in general, and what is a girl's point of view. Finally, I get to know. So Harshita, कैसा चल रहा है सब? How is life अभी फिलहाल? Currently it's just going really nice. Like फिलहाल life is just एक set routine है कि you know college चल रहा है, college से आओ ये करो वो करो. So it's kind of like going. Packed है, fixed है, scheduled Yeah. है, हाँ. But you like this routine more or you like the मतलब I get to choose वाला routine? No, I like this routine more because what happens with me is I am a very big procrastinator. So जब मेरे पास free time मिलता है तो then I end up doing nothing. So for me it's like there's no in between. Either I'll do a lot of things एक साथ. So when I'm doing something I'm doing everything. अच्छा. And नहीं कर रही हूँ तो nothing. So for me this is better because then this way I get to do things every day. Correct. हाँ मेरे को मतलब अगर free time मिला तो all I'm going to do is read books the entire day. Entire day I will not do anything else. okay. So it is like a weekend जो end ही नहीं होगा. पूरा time you are. Yeah, हाँ. मेरे को अभी 2 months छुट्टी थी कॉलेज से. हाँ. Only read books या only watch series में हाँ. रहती थी. अभी सीरीज का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रेज है. हर जगह पे वही है. सब सब्सक्राइब करके बैठे हैं और देखते रहते हैं. मैं मिनी सीरीज देखती हूँ बिकॉज मैं जब ज़्यादा देखती हूँ मतलब तो मेरा स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो मेरी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है. हाँ. तो उससे 7-8 एपिसोड के जो छोटे छोटे होते हैं हाँ. so I go watch them. But एक साथ. If I start watching तो then हाँ. रिपर मोड में I'm watching. हाँ वो होता ही है. मैंने भी स्टार्ट किया था सीरीज एंड आई एम लाइक कि चल यार रात लेट हो गया अभी क्या बट आई एम लाइक कि नहीं यार आई वांट टू सी द नेक्स्ट हाँ पार्ट. थोड़ा सा देख लेंगे हाँ. and it just never ends. Like पूरी रात निकल जाती है. आई नो दैट इज. फिर सुबह पता चलता है कि Shit. My sleep schedule is एग्जैक्टली. ऐसा होता है. इसलिए then I prefer this life over अच्छा. एंड व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू रीड? romance. रोमांस नाइस. That's it. That is those are the only books that I read. ओके. For some reason, it just मैं कोई और बुक नहीं पढ़ पाती हूँ. नो बट आई फील कि मैंने पढ़ा नहीं है पहले बट मैंने मेरे दोस्तों से सुना है कि व्हेन यू रीड अ बुक अभी बी इट रोमांस और एनीथिंग यू पिक्चर इट योरसेल्फ एंड दैट पार्ट इज वेरी मतलब मोर गुड. Exactly. बहुत अच्छा लगता है You कि- can imagine everything going in front of your eyes. And it's like when you're reading a book, it's like you're peeking into the imagination of somebody else. Yeah. You're peeking into somebody else's mind. yes. So that part is really, I love that. I don't know, but बचपन से I've been this. I don't know why. लेकिन बचपन से I've been very much into reading. So जब Okay. सब सो जाते थे दोपहर में, I used to go out, I used to get a book and I used to read. I don't know. That's nice. अभी even I have seen ना many people वो बुक स्टार्ट करते हैं फिर वो स्नैप पे डालते कि ऐसा ऐसा है एंड आई एम लाइक ओके ऐसा भी बुक है ऐसा भी बुक है. जैसे अभी
मैंने 2 बुक के नाम पढ़े थे, स्टार्ट्स विद अस It ends with us and it starts with us. तो काफी मेरे फ्रेंड्स वो पढ़ते थे, तो आई अंडरस्टूड की एंड ऐसे जैसे आई वाज गोइंग थ्रू, इट इज अ गुड स्टोरी, मतलब हाँ ऐसा अच्छा तूने पढ़ ली? पढ़ा नहीं है, मैं बहुत ऐसे जस्ट रैंडमली एक पैराग्राफ पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि ओके अपना माइंड इमेजिनेटिव भी हो सकता है. आई एम मोर इनटू अभी ऑडियो वीडियो विजुअल्स में, मतलब अगर हाँ मुझे वैसा मिलता है तो ज़्यादा पसंद है. हाँ बट दिस इज़ वेरी गुड, इसमें यू क्रिएट अ सिनेरियो बाय योरसेल्फ एंड लाइक, बट ठीक है, आई हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग, maybe I will be starting. You can start first, select your genre basically. क्या पसंद है पढ़ना, and then you can start with the light book. तो जरूरी नहीं है कि 500 पेज की बुक लेके पढ़ना. हाँ वही, but to select also, if you send me to a crossword, I'll be like कि for me every book is new. मैंने कुछ नहीं पढ़ा है पहले, तो I'll be like कौन सी उठाऊँ, क्योंकि पहले मैं छोटा था, मैं सोलर सिस्टम उठा देता था, अब मैं वो नहीं पढ़ सकता. इतनी बुक पढ़ी है, स्कॉलास्टिक में आती थी. हाँ वही, मैं तो वही से उठाता था, वो कार्स की थी, बाइक्स की थी, और उसमें फ्री स्टिकर्स मिलते थे, तो मैं मम्मी को बोलता था मम्मी 2 का कॉम्बो है, सस्ता है, ले लेते. तो मम्मी बोलता तू पढ़ता तो कभी नहीं, बुक क्यों ले रहा है, बोला फोटो देख लूंगा. स्कॉलास्टिक वाज अ वाइब. जो वो स्कूल में आते थे, ऐसा लगता था कि वाओ, आई गॉट टू गेट ऑल दीस बुक्स नाउ. नहीं स्कॉलास्टिक बेस्ट था, बेस्ट. नहीं हम हमारे इसमें दे स्टार्टेड विद, जैसे स्कॉलास्टिक एंड हुआ ना, दे स्टार्टेड विद न्यूज़पेपर्स. मतलब आओ तुम न्यूज़पेपर पढ़ के जाओ, और फिर पता चल गया उनको कि नोबडी इज इंटरेस्टेड, ये नहीं. फिर वापस वो एक होल्डिंग लगाते कि दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कॉलास्टिक बुक, दिस इज, और फिर सब जाके बोलते आई वांट दिस, आई वांट दैट. अलग ही क्रेज था वो. स्कूल वाज लाइक, नहीं वो लाइक मज़ा आता था. एंड मैंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं बुक लेके जाता था, घर पे पढ़ता था, एंड मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं. जस्ट मैं फोटो देखता हूँ, अगर यू गिव मी अ बुक व्हिच हैज नो फोटोज, आई विल नॉट लाइक इट. आई एम लाइक कि क्या है इसमें, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, और इट्स गुड. रीडिंग इज सीखना है. आई वांट टू स्टार्ट. a lot of people, मतलब मैंने इतने सारे, मेरे ironically मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, मेरे आजू बाजू वाले लोग नहीं पढ़ते. so they like, they even if they take a book 5-10 पेज पढ़ के उनको लगता है वो नींद आ रही है, and I'm like no. वो होता है मेरे साथ भी. मैंने भी एक बोरो की थी बुक, एंड मैंने कभी किससे ली थी, मैंने एक फ्रेंड से ली थी. तो मैंने, उसने बोला कि तू पढ़ने वाला है, तो बोला हाँ. फिर मैंने लिया बुक, मैं फोटोज देख लिए सारे, और मैं पढ़ने लगा. ऐसा नहीं कि अनइंटरेस्टिंग है, बट मैं नहीं कंप्लीट कर पाता. लाइक यार बस ठीक है, अच्छा लगा, ऐसा है. हाँ बट ऑब्वियसली इफ आई गेट इनटू इट, तो फिर शायद हो सकता है. नहीं ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमको पढ़ने ही चाहिए बुक. ऑब्वियसली सबका अलग अलग होता है. सम पीपल लाइक टू रीड, सम पीपल लाइक टू लिसन टू, मतलब ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल होती है, सो पीपल लिसन टू इट. और इफ यू लाइक टू वॉच अ मूवी और सीरीज, दैट्स टोटली अप टू यू. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. करेक्ट. नहीं वो तो है, बट या इट डिपेंड्स. करेक्ट. अभी तो लिसनिंग भी एक अच्छा ही चीज़ है. जैसे पॉडकास्ट में भी आता है ना स्टोरीज और वो सब, जैसे हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑडियो वीडियो है. लेकिन जो ऑडियो पॉडकास्ट है ना, उसका भी बहुत है. स्पॉटिफाई पे हम देखा ना कि जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, हैवी ट्रैफिक पुणे आफ्टर ऑल, तो फिर क्या करना है. कल ही अटकी थी, इतनी बुरी अटकी थी. मैं पवेलियन गई थी, और आज इतना गंदा ट्रैफिक लगा, बहुत गंदा ट्रैफिक लगा. पवेलियन हमारे कॉलेज के पीछे ही है. हाँ तो जिस दिन बताया था, तो वो एक्चुअली हमारे इधर तो कल क्या हो गया था, अमित शाह आए थे. हाँ, मैं दो बार काम से निकली थी, दोनों बार रोक दिया, मुझे नहीं जाने दिया. वही मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरी बिल्डिंग के बाहर कब से ट्रैफिक आने लगा, क्योंकि इधर पूरा पैक हो गया था. अच्छा हाँ, क्योंकि उधर से बंद था. तो आई वाज लाइक कि मम्मी कुछ हुआ है शायद, आप बाहर हो, संभालो. तो उन्होंने बोला अमित शाह आए, तो वह उसकी वजह से ऐसा है. बताया भी नहीं आ रहे. मैं तो गई, सडनली 4 पुलिस से रास्ते में रुके थे. वो इसका टर्निंग पता है तुझे, लोड़ा कॉर्नर में जो टर्न आता है बालाजी के आगे से, वहीं पे 4 पुलिस से रास्ते में जगह ही नहीं जाने की, उन्होंने रोक दिया वहाँ पे. क्योंकि उनको वो स्पेशल ये है ना, उनकी गाड़ी जाएंगी. मेरे सामने जा रही थी, इतनी सारी गाड़ियाँ गई है, ऊपर से वो पर्पल ऑरेंज लाइट. नहीं मुझे ऐसा फील आया कि यार एक बार मुझे ऐसी एंट्री मारनी है. मूवी छोड़, मूवी में नहीं जाना, ऐसी एंट्री मारनी है. अरे मतलब ट्रैफिक जाम करके नहीं, बट ऐसा एक रहता है ना कि यार वेटिंग, somebody is waiting कि यार भाई ये आ रहा है. फैंटेसी है मेरी, ऐसा वर्ड लगता है. ट्रैफिक जाम करके तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ ट्रैफिक में, मेरे से नहीं होता. इट्स लाइक कि
कार ड्राइविंग मुझे पसंद है, बट फिर जैसे ट्रैफिक आ जाता है, लाइक शिट, कार नहीं लेनी चाहिए थी, बाइक लिया रहता तो घुसा लिया रहता कहीं। इसलिए मैं हमेशा टू व्हीलर प्रेफर करूंगी। इफ आई हैव अ चॉइस मैं टू व्हीलर ही प्रेफर हाँ, करूंगी। मैं इतना दूर मैं जाती नहीं हूँ, पता है। मैं आई एम समबडी हु सो बैड एट लोकेशन Same. एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन मेरा बहुत हाँ, लाइक इफ यू टेल मी ना कि चल आज यहाँ जाते, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैप लगा, ठीक है। 2 दिन बाद इफ यू टेल मी अगेन ना, आई एम लाइक कि याद नहीं यार, वापस लगा। आई डोंट रिमेम्बर ओनली हम कैसे गए थे क्या, और मैं उस चीज जगह पे 10-20 बार गया हूँगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे। मैं गूगल मैप से भी गलत रास्ते बताती हूँ। माय सिस्टर इज गिवन अप ऑन मी, शी लाइक तू मत लगा इसे। कल हम जब जा रहे थे, मैं उसको एक एयरपोर्ट दिया, मैंने एक एयरपोर्ट लगाया, मैंने बोला सुन ले तू क्या है। हाँ। मैं फिर भी देख रही हूँ, हाँ। पर सुन ले, मेरे पे भरोसा मत कर। मैंने Okay. बहुत मिसलीड किया उनको। मतलब वो ये यूजुअली इसमें होता है, वो अगर फ्लाईओवर चढ़ना रहता है या फिर बहुत गंदा ओह शिट बहुत गंदा पका। हम ऑक्सफोर्ड गर्ल्स क्लब जा रहे थे, हाँ और फ्लावर के नीचे से ले रहा था। हाँ। मैंने ऊपर से- अरे एक्चुअली वो बहुत ये हो जाता है, मतलब पता है उधर वो दिखाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि हाँ, क्या। ना, हाँ हमको कैसे पता पड़ेगा? अगर वो फ्लाईओवर का नाम बोलते हैं कि टेक फ्रॉम दिस फ्लाईओवर तो ठीक है, वरना वो से बोलते कंटिन्यू स्ट्रेट या फिर हाँ, नहीं इतना दिमाग चलता। अभी क्या पढ़ रही है तू? आईटी इंजीनियरिंग कर रही हूँ, 3rd ईयर अच्छा, आईटी कैसा लगा आईटी? चल रहा है। चल रहा है बस। मैं एंजॉय क्यों करती हूँ कॉलेज में, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी है। अच्छा, जैसे So I'm like, I'm the editor for my college magazine, ओह and literature and content writing and all of that is something that I've really always been very very passionate about. ओके, कंटेंट राइटिंग। Yeah. Okay. So मैं blogs लिखती हूँ या मैं poetries लिखती हूँ। So क्योंकि इतना बचपन से आप पढ़ते हो तो somehow it's like you're into writing also, हाँ. हो जाता है। So वो and then there's this club also in our college, Office of International Relations. तो that's basically अगर आपको बाहर मास्टर्स के लिए जाना है, कहीं भी जाना है आउट ऑफ हायर स्टडीज के लिए, तो दैट्स अ स्टूडेंट सेल वगैरह। ओके, सो उसमें भी आई एम एट अ पोस्ट। सो ये सब है। तो दैट्स आई पर्सनली डू नॉट एंजॉय कोडिंग। इफ यू आस्क मी, हाँ। कोडिंग इज नॉट इट फॉर मी। नहीं, कोडिंग इज समथिंग कि इफ यू एंजॉय इफ यू डोंट तुम कुछ भी कर लो, इट्स जस्ट नॉट गोना हैपन। वही ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड गो देयर। जबरदस्ती जाके अटक जाना इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि जिनको पसंद है ना दे विल फाइंड अ वे टू फिगर आउट द कोड आल्सो, बट जिनको नहीं पसंद दिल में छोड़। मतलब वेब डेव इज फिर भी इंटरेस्टिंग। मैंने स्टार्ट किया है, आई लाइक वेब डेव, बट डीएसए इज वो होता है, इट इज ऑल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे भी पर्सनली कोडिंग नहीं पसंद। मुझे कोई शीट दे दे, मैं एनालिसिस कर दूंगा और वैसा कुछ कर लूंगा, मेरे को वो पसंद है। लेकिन खुद से कुछ मतलब ऐसा क्रिएट करना, ये करना, क्रिएशन नहीं पसंद, डिजाइन एडिटिंग जो हम क्रिएटेड चीज को करते हैं ना, वो चीज मेरे को तो ये मतलब इट्स बेसिकली यूआई यूएक्स। या मुझे भी मतलब उसमें इंटरेस्ट आई एम थिंकिंग। मैं कल ही देख रही थी, हमारा प्रोफेशनल इलेक्टिव में मैंने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लिया है। दैट्स बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस पे है पूरा, सो दैट डजंट इवन रिक्वायर कोडिंग। हां, तो सो आई एम लाइक हां, आई गॉट माय वे आउट। नहीं, बट अभी ऐसा बहुत जगह पे ऐसा मैंने देखा है कि यू डू इफ यू डोंट नो कोड इट्स ओके, कम हियर एंड वी विल टीच यू दिस दैट। और कोड भी कॉपी पेस्ट करके अवेलेबल मिल जाता है, ये मिल जाता है, फिर उसमें तुम थोड़े एडिट्स कर हाँ, दो। वो ठीक है, बट उतना इंटरेस्ट आना चाहिए। हाँ, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मैंने कोशिश की, ऐसा नहीं कि मैं कोशिश में 3rd ईयर में हूँ अभी, 3rd ईयर में हूँ। तो तूने 2 साल कोशिश की है, बट मुझे somehow वो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। आना नहीं आना सेकेंडरी हो जाता है, जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने पर्सनली क्यों लिया था मैं तुझे बताती हूँ। इंजीनियरिंग व्हाई आई चोज इंजीनियरिंग वाज आई न्यू कि 4 इयर्स में मैं आई विल बी फ्लेक्सिबल टू डू एवरीथिंग एल्स दैट आई वांट। ओके, तो एंड ऑब्वियसली क्योंकि मुझे मतलब साइंस में इन जनरल इंटरेस्ट है, कोडिंग में नहीं बट साइंस में इन जनरल इंटरेस्ट। तो मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग इज आई डू इट बिकॉज मैं अपने साथ साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। इट्स नॉट ओनली कि मुझे एक ही जगह पर फोकस करना है। आई एम फ्लेक्सिबल डूइंग एवरीथिंग। अब पता ही है कि इंजीनियरिंग छोड़ के सब करते हैं। हाँ, मैंने भी मतलब अभी मेरे इधर भी सब इंजीनियर्स है, तो बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग का कर। आई एम लाइक नहीं यार, मुझे समझ ही नहीं रहा क्या है इंजीनियरिंग, कैसा है, क्यों है।
पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं हो रहा एंड फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार ऐसा कुछ करना है जिसमें मुझे टाइम मिले. इंजीनियरिंग में मैंने ऐसा सुना है कि काफ़ी मतलब वैसे टाइम लग जाता है और इट इज़ क्या बोलते हैं कि हाँ यू गेट अ डिग्री ऑफ कोर्स अ गुड रेप्यूटेबल आई एम होपिंग एंड देन फिर तुमको फ्यूचर में प्रेफरेंस में मिलता है. Honestly, it's upon your skill, basically, employability. ओके कि अगर आपको आपके पास स्किल नहीं रहेगा तो then इसलिए ऑल फील्ड्स आर गुड. या क्योंकि स्किल पे मैं तो इनफैक्ट ऐसा कुछ अपने टाइम तक भी लाइक 5-6 इयर्स अगो ऐसा ही था कि 3 ही स्ट्रीम्स है. इट्स ईदर साइंस, इट्स कॉमर्स और आर्ट्स. बट अभी पिछले 5-6 इयर्स में नाउ यू नो लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज दे कैन चूज व्हाटएवर दे वांट. Exactly. हर स्ट्रीम में यू हैव यू नो a career, you can make a career out of anything. करेक्ट वो तो है. मैं आई टोटली एग्री. बट अभी तो यू मेंशन ना गर्ल्स एंड बॉयज, तो व्हेन इट कम्स टू दिस चूजिंग दिस कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है क्या बिटवीन देम? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल यू नो एज अ सोसाइटी हमने सब कुछ नॉट ओनली करियर चॉइसेस बट इन जनरल योर चॉइसेस को हमने बहुत जेंडर बायस कर दिया. हमने जेंडर एसोसिएट कर दिया है कि अगर इफ अ गर्ल wants to do something like suppose for example अगर हम लेते हैं कि उसको F1 ड्राइवर बनना है. ओके ऐसा आई डोंट नो ऐसा होता है नहीं. होता होगा. हाँ. आई एम नॉट श्योर. So even if she has a name like this, हाँ. people are always going to bring her down कि no, this is not what girls are meant to do. ओके या अगर कोई लड़का है, okay, he wants to learn कोई क्लासिकल डांस है, कथक डांसर, the entire society will be so quick to jump at you and call you names, bad names. कि ये तो गे है, ये तो ये है. It's not a bad thing, you know. I don't think being gay or being transgender is a really bad thing. It's not. Okay. It's at the end it's about embracing who you are. But हमने we've just done them so bad. Like हमने सब कुछ इतना जेंडर एसोसिएट कर दिया. अभी का एग्जांपल ले लो तुम, बारबी ओपेनहाइमर. Boys will refuse to go. Yeah. I'm not talking about men. Okay? I'm Yeah. talking about boys. जिनमें उतनी maturity नहीं है अभी तक. Okay. Irrespective of your age, if you don't have the maturity, you are a boy. Simple. I get it. So they will refuse to go. They'll say कि ये तो लड़कियों का है, हम क्यों देखें? This, that. Okay. You see a boy or you see any men or male wearing pink t-shirt or pink clothes, everybody will be just so quick to point ये finger क्या at पहना them. तूने? And it's just so bad. People stop expressing themselves, you know. People stop getting excited about things they enjoy about. Correct. Because of the society. Exactly. And you are a terrible person if you make somebody feel bad about being excited about something. Period. You are a terrible person. Correct. And I just think, और मैं आजकल I go and if you read comment sections on any reel, लड़की का हो या लड़के का हो, it's just so toxic. And then I sit and I'm questioning कि what progress are we making as a society? And it's not an India का बात नहीं, it's everywhere in the world. Correct. You see an outspoken woman, okay, somebody who's very empowered, a woman who speaks her mind. You see the comments, इतने गंदे comments होते हैं. People cannot simply accept the fact कि a woman is in charge of her life. So that's what ना, because we have made these partitions कि ये इतना ही कर सकते and you should not go ahead of this and you should not, मतलब they will not allow you to step in only, मतलब you don't come at this field, ऐसा हो जाता है. Exactly. और कहीं भी तुम लोग अगर देख लो कि if some men, they like applying nail polishes or they like dressing or doing makeup, it is their choice, it is their preference. The comment section is, people in general, comment section छोड़ो, हम in general real life पे इतना बुरा बोलते हैं तुमको. I agree कि हाँ ठीक है कि ये होता है. I totally agree कि people are not appreciating this कि ऐसा कुछ हो रहा है. If a boy is trying something which is girlish in point of view, in their point of view. तो फिर they are not accepting ऐसा. And दोनों तरफ से होता है, मतलब यहाँ पे भी ऐसा होता है कि why you are doing this. ये तो है. But one thing I don't understand because अभी जैसे feminism है, तो it's not that I am going supporting or not supporting, ऐसा कुछ नहीं है. But मुझे ऐसा लगता है कि it should not be misused. Exactly. A lot of people have a very
wrong conception on what feminism actually is. And a lot of, मैं खुद agree करती हूँ कि a lot of women also use it to their, you know, side की वो women card play करते, वो victim card play करते. That's not what feminism is. In fact, I feel like men and women are not equal biologically also. Okay. So even biologically they are not equal. Obviously, which is why पुराने ज़माने से ऐसा start क्यों हुआ था कि men used to go hunting and women used to, you know, work, because ठीक है, होता है biologically men are stronger. They're not. What feminism actually is, it's about empowerment. It's like you are a man, okay, you are married, you have a kid, and you get to be the CEO and nobody questions it. Okay. But the moment it's a woman, how will you manage, you know, being a mother and, you know, being a CEO or being at a corporate level? And if you try to prioritize your work, you are a bad mother. Okay. होता है ऐसा, हमने कई हर जगह देखा है. Okay, so that's what feminism is, कि you get to do everything and you're not questioned. So why is it questioned when it's a female? So it's not about females are better than men. That's not feminism. और ऐसा होता है कि बहुत misconstructed ये है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि when, you know, you talk about feminism, it's about a female being a better than a man. It's not. No, it's not like that, of course. It's about getting equal opportunities. Yes, right. कि अगर तुमको ये करने मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए. वही नहीं, और वो ऐसा ही होना चाहिए. Yeah. क्योंकि there is no मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि why you should not do it. ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए. और क्यों, just because you think कि नहीं उनसे होगा नहीं, या फिर लॉजिकली भी सेंस नहीं बनाता है. तो वही I felt this कि हाँ बराबर है. I totally agree कि they should be supported. सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि people who feel कि they are right, उनके साथ भी तो यही हो रहा है ना कि if I feel कि चलो both are equal ये है, बट फिर भी प्रेफरेंस जब मिलता है कभी कोई, तो ऐसा रहता है ना कि नहीं गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तब आई फील लाइक यार मैं तो सपोर्ट करता हूँ उस दोनों को, तो फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे भी ऐसा लगता है रिजर्वेशन इन जनरल, मैं बात नहीं करूँगी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. हाँ नहीं कंट्रोवर्शियल. रिजर्वेशन इन जनरल मैं अग्री नहीं करती हूँ. आई फील इट शुड टोटली बी ऑन योर पोटेंशियल, इन योर कैपेबिलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कास्ट यू आर और व्हाट जेंडर यू आर. I think it should be an equal opportunity. I feel like maybe कुछ companies में they keep separate seats for females and ladies because mostly male powering होती है. हाँ ठीक है, मतलब जहाँ रिक्वायर्ड है ना, आई विल टेल यू कि कंपनी समझ मोर इनटू, अब उनको जो एक्सपर्टीज चाहिए लड़कियों की चाहिए, तो वो वैसे करके मांग रहा है, ठीक है, बट नॉट बिकॉज कि ये चल रहा है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग. इफ यू वांट ना मेंशन कि ऐसा चाहिए हम बिकॉज ऑफ, हाँ, बट इस वजह से अगर होता है ना तो इट फील्स बैड फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी अग्रीइंग टू द फैक्ट कि यार बोथ आर इक्वल, समझा? सो फॉर मी इट इज लाइक दैट ओनली. बट या यू सेड कि कहीं ना कहीं यू रिक्वायर दिस अमाउंट ऑफ पीपल कि यार यहाँ पे लड़कियां ही चाहिए, यहाँ पे लड़के ही चाहिए, वहाँ पे करो ना. आई फील बायसनेस नहीं होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. हाँ वही वो तो है. एंड अभी तो अगेन कितने सारे जेंडर्स है, एंड हाँ इट इज, बट उसमें भी इट इज लाइक कि आई डोंट नो व्हाट कैसा रहता है ये, बट जब मैं सुनता हूँ लोगों से, देयर आर पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग इट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, देयर आर पीपल हु आर लाइकिंग इट, बट ऐसा भी है कि लाइक मेल और फीमेल तो था पहले से, ठीक है, मेल और फीमेल तो था, अभी ये सारे आए और उनका स्टैम्प भी लग गया, मतलब दे आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड, तो ये अब कितना चलेगा, मैं ऐसा पूछूंगा. अरे मतलब कितने 80 to 83 जेंडर्स है अभी तक, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऐसा कुछ तो है. तो व्हेन इट स्टार्टेड ना, इट वाज ओके, चल 2-3 आए या, बट अभी बिकॉज वी आर सपोर्टिंग एंड सपोर्टिंग इज ओके, बट वी आर लाइक कि चलो तुम मेन हो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, ऐसा हो गया. इट इज गोइंग ऑन. अभी 80, मैंने अभी पढ़ा था कहीं, तो 82 प्लस जेंडर्स हो चुके हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि अभी वो कंट्रोल नहीं रहा उस पर. एंड फिर कैसा होता है कि ओके यू आर गिविंग देम राइट्स, यू आर गिविंग देम दैट, फायदा हो जाता है, मतलब दे आर लाइक नाउ वी नो वी आर एम्पावर्ड, ये है वो है. स्टिल उतना मिला नहीं है, इतना मिला नहीं है, बट ऐसा हो रहा है, ऐसा मैंने अभी होता होगा, आई एम नॉट रियली श्योर. पर तुमको कितना भी स्टैम्प मिल जाए ना, ये तुम्हारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट विल नेवर एक्सेप्ट यू. आई थिंक we only have one job is to mind our own business. Okay, वो हमसे एक जॉब वो भी नहीं होता, पता है. We just can't let people be the way they are. Correct. मैंने लिटरली परसों ही एक देखा था, a teenage boy
committed suicide because he was bullied in school. क्योंकि he liked to apply nail polish और थोड़े से जो चीज़ें according to society उसको नहीं करनी चाहिए थी, जो सिर्फ गर्ल्स करती है, उसको करना था. But then he was so bullied at school, he committed suicide. He tried contacting his teachers also, but the school staff was also so ignorant. They didn't help him out, and I feel so sad for the boy, for his mother, and for the society in general. कि हम is this the kind of example that you want to set for your kids? Correct. And ऐसा होता है ना कि कुछ भी कर लो तुम, you are so quick to point fingers at others, ठीक है, लेकिन जब खुद की फैमिली की बात आती है ना. करेक्ट. नहीं वही है. एंड ये जो हो रहा है ना, दिस इज रियली सैड कि यू आर नॉट. अभी ठीक है, ही हैज दिस, ही लाइक्स टू पुट नेल पॉलिश, उसका वो कुछ भी कर रहे हैं. हाँ, until and unless it is interfering with you, exactly, you should not point out. ऐसा मुझे लगता है. exactly. मतलब वो आके तेरे बाल में कुछ डाल रहा है तो गलत है. Did he go and do something to, or did he even try to tell you कि accept my methods? Yeah, let that person be. That's simple as that can be. उनकी choice. You are not going and paying their bills, bro. That's what ये होता ही है कि जैसे you said कि mind your own business. वो चीज़ नहीं होती क्योंकि हमारे आपके सामने वो चीज़ आ जाती है, and we are ready to comment on it. अभी होता है ना ऐसा कि you see somebody and you feel like okay, I should comment, and that comment could hurt that person in any possible way. Totally. I think you do not even know what a person is going through. That person may have the brightest mind, maybe the happiest person to be around, but what do you know कि उसकी लाइफ में exactly चल क्या रहा है. And there is just so much of hate and negativity in this world. Why don't we just be kind to somebody? Exactly. आपके words किसी का दिन बना सकते हैं और किसी का दिन खराब भी कर सकते हैं. So just be so wise with what you are saying, क्योंकि when you are dead, nobody is going to remember you for the money you had और तुमने कितनी luxurious life जी. They will always remember you for the person you are, कि तुमने उनको on bad days कितना अच्छा feel करवाया था. Right. And that's how you earn your respect and your value, not with money. And it is always nice to be good with someone because it does not have a drawback. Exactly. And you don't expect anything in return. You just go, तू कुछ तो अच्छा बोल दे, अरे he'll be happy. वो happy रहेगा तो और happy होगा, sad रहेगा तो happy होगा, या फिर काम करेगा. But it is not going to affect his life in a negative way at all. वो याद रखेगा तुझे, पता है. Even हम you should begin with family. कल को अगर मम्मी अच्छा खाना बनाती है, जिसको हाँ मम्मी बहुत अच्छा खाना बना था, I love you, she'll be so happy कि next time she'll try to तेरे पसंद का खाना बनाएगी वो. या it's just किसी को, it's the emotion I feel. Yeah, exactly. Everybody likes to be appreciated, obviously. Exactly. ऐसा कोई इंसान नहीं है, तुम कितना भी cold hearted बन लो, at the end everybody wants to be loved and appreciated. तो तुम जाके बोलोगे उनको कितना अच्छा लगता है कि, and how good is it if somebody is feeling good because of you? Exactly. But while appreciating, people feel like if I appreciate him, he'll be like he's better than me. वो competitiveness हो जाती है when you start appreciating a lot ना. I'm against this. Obviously I'm against this. But ऐसा बोल रहा हूँ कि there are people who will not appreciate you even if they are like very close to you या फिर ऐसा, क्योंकि they feel like ठीक है ना, छोड़ना, मतलब it doesn't matter. But हाँ, अगर what I feel कि अगर वो मुझे ये भी बोल देना कि वाओ, ऐसे वाओ भी लिख देना, I am like भाई सही है. हाँ भाई, तुम्हारे वर्ड्स की बहुत इम्पैक्ट होती है किसी पे. तुम अपने रिक्शा वाले अंकल या वॉचमैन अंकल को बोलो थैंक यू अंकल, को याद है, वो खुश हो गए कि somebody is appreciating what I'm doing. Exactly. वो तो बहुत फर्क पड़ता है. Whenever I go to college या फिर मैं सोसाइटी में नीचे हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ ना, मैं उनको हंसते हुए देखा है, बट वो अलग ही ये आदत है कि यार there is somebody to talk to me, ये वैसा है. हाँ, एंड वो मतलब मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ. मुझे बोलते हैं ना बेटा देखना फोन का ये क्या हो गया है, मुझे पता चलता है कि यार ओके इनकी लाइफ में कैसा है. फिर ये घर पे यहाँ से डायरेक्ट घर कॉल करते हैं तो इनको वो तकलीफ होता है. सोच उनकी किसी ने मदद नहीं की तो हाउ इज कॉन्टेक्टिंग एट होम. I mean it's just people need to understand this. तुमको ये करना चाहिए लेकिन तुम कर पूरा ऑपोजिट रहे हो. They are constantly trying to pull everybody else down. करेक्ट. एंड ऐसा है कि यार अच्छे लोग तो बहुत है, ऐसा हो जाता है फिर. लाइक
इफ यू टेल समबडी ना कि तू भी कर ये, तू भी डोनेट कर ये करो, बोला हाँ तो कर तो रहे सब, जरूरी थोड़ी है सब डोनेट कर रहे, मैं क्यों करूँ? हाँ, अरे ऐसा- सब यही बोलते हैं, nobody does it. नोबडी वो एक होता है, इफ यू टॉक अबाउट जैसे जब स्टार्टिंग में हमको ऐसे ड्राइव्स कराते थे क्लीननेस और वो सब, तो वही था ना कि तेरे अकेले के फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा वो ऐसे ही था कि वन स्टार्टेड देन एवरीवन स्टार्टेड एंड देन फिर वो हैबिट हो जाती है एंड फिर इट रूइंस एवरीथिंग. Yeah, but then मैंने one thing that I've learned over the years is you cannot change people. You cannot. मैं हमेशा से I've always been this hyper person. Okay, so if there is something wrong going in front of me, तो मेरे को I just हाँ, you feel like कि तू बात कर लेगी हाँ. उससे या और मतलब you will address the situation. या सो पहले क्या होता था, अराउंड में जब 8th 9th 10th में थी, तो जब कोई मेरे साथ रोड पे थूक देता या कचरा भी फेंकता था तो मैं उनको बोलती थी अंकल ये क्या चल रहा है, उनका कचरा मैंने उनको वापस भी दिया हुआ है. अरे बाप रे, पर देन धीरे धीरे रियलाइज कि मैं कितना करूंगी, कुछ नहीं एक को बोलूंगी, दो को बोलूंगी, मेरे आजू बाजू 100 है. सो इट्स नॉट गोना हैपन, द चेंज इज नॉट गोना हैपन अनटिल अनलेस सबके अंदर से आए कि ये चेंज चाहिए. भाई तो मैंने बस आई लेफ्ट इट, आई वाज लाइक देयर इज नो यूज, मैं अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकती. व्हाट यू कैन डू एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इज डू गुड ऑन योर पार्ट. Yeah, exactly. You cannot influence anyone कि you should not do this, you should not do that. हाँ, you can try. मतलब एक बात तू फिट कर सकती है उसके माइंड में, बट रैंडम पर्सन तो आई डाउट कि तू किसी रैंडम पर्सन क्या ही कर लूंगी मैं. ऐसा होता है. अभी मैं जैसे ट्रैफिक में था तो एक जन फोन पे बात कर रहा था, तो उसका गाड़ी ऐसा हो रहा था, तो मैंने बोला कि भाई रख दे फोन, गिरेगा. तो इज लाइक तू तेरा काम कर, ये कर वो कर. एंड देन आई एम लाइक ओके, क्या मतलब ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट, अगर उनको करना था ना तो पहले ही कर चुके. एग्जैक्टली. वो ऐसा है, यू कैन नॉट टेल देम कि ये मत करो वो मत करो, इट डजंट वर्क. प्रॉब्लम इज दैट. तो चेंज तो इंसान में तभी आती है जब उनको अंदर से एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन विथ whom you are, मतलब तुम्हारा जो सराउंडिंग्स है. हाँ. एनवायरनमेंट मतलब वो कितना ज्यादा अफेक्ट करता है. वो बोलते हैं ना, शो मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू हु यू आर. इट्स सो ट्रू. यू कैन लिटरली द कंपनी दैट यू स्टे विद इतना ज्यादा मैटर करता है बिकॉज इट शेप्स एंड मोल्ड्स यू एंड द पर्सन दैट यू बिकम. एग्जैक्टली. So it's very important to choose your company. हाँ तो but it is also not very easy to choose your company क्योंकि you don't know ना, everybody is a stranger at first, then you meet and फिर ऐसा भी होता है कि you should have met somebody else but you cannot meet him, वो किधर और चला गया है, चली गई, तो ऐसा भी होता है. but फिर you are with those people and you are happy क्योंकि you are building that environment, ये वो. एंड चलो स्कूल में तो इतना अफेक्ट नहीं होता, कॉलेज में यू स्टार्ट टू नो कि ओके ये पर्सन ऐसा भी है, ये ऐसा भी है, ये भी है, बट ओके यू हैव टू बी कि मैं हूँ इसके साथ तो इट्स ओके. सो यू ट्राई एंड ऐसा कुछ होता है क्या, यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ My friend? या और इट्स अ वेरी ओपन टॉक. No, personally I am a very open person. तो अब मेरे को अगर कुछ फील भी हो रहा है, if I'm happy मेरे फेस पे दिख जाएगा, if I'm sad मेरे फेस पे दिख जाएगा, I'm angry मेरे फेस पे दिख जाएगा. So I've always been this very emotionally open person. Okay. So I am not somebody who can keep everything inside or hide my feelings. So very open. So even my friends know it and people in general know it. So I don't really have to hide or something. And I feel like if you have to hide who you are or you're not part of yourself, then I don't think you're with the right set of friends. But have you been criticized for that or like? Yeah. Because that happens कि at a point they are like okay यार बस मतलब ठीक है ना, हो गया, अभी हम दूसरा कुछ कर रहे. I feel sometimes ऐसा होता है कि you're not appreciated या फिर you're not allowed to do that. Allowed in the sense कि they're not liking it. हाँ तू हमेशा बोलते रहता है ये ऐसा ऐसा. I'm not talking about my personal experience, but मैंने ऐसा देखा है कि जैसे we mentioned कि we don't allow people to do what they want. तो ऐसा होता है, because of that then you are not yourself, you are somebody who is there for that environment. So you become like a shadow. Yeah. So you're not your real self. ऐसा होता है. मैंने काफ़ी लोगों को मेरे आजू बाजू देखा. पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मेरे जो कॉलेज में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो थिंग है सारे के सारे इंट्रोवर्ट्स हैं. हाँ सेम. ऐसा लगता है मैंने उनको बात कर करके अडॉप्ट कर लिया कि भाई and I'm the only extrovert. So मतलब उनको यूजुअली इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आई जनरली फील, मतलब मैं अगर कोई सुन रहा है तो मैं एडवाइस भी करूँगी कि इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट अप्रिशिएटेड, कोई भी रिलेशनशिप, वो फ्रेंडशिप हो या इवन इन अ रिलेशनशिप, you feel like you are not being accepted for who you are. If you feel like they are
forcing you in a way to change yourself or to be a certain way, then it's time for you to walk out. Okay. I mean, nobody is as important as yourself. इतना तो मैंने सीख लिया, the only constant in your life is going to be yourself. Correct. People will come and people will go. Obviously, चाहे वो कोई fights हो जाए या death हो जाए, तो तुम्हारे पास कौन बचता है at the end of the day? You ना. So what's the point if you are going to compromise on who you are and feel suffocated and sad only to make the other person happy? Correct. You keep the other person happy, but not at the cost of your own happiness, na? Correct. And that happens with nice people. Like they feel like, okay, if it's making the other people happy, I'll adjust. But you don't need to adjust. Exactly. It is your life. You have to. तो मेरा भी ऐसा ही था. I was like that only कि if in case things are not going my way, it's okay ना. वो खुश है and मैं भी खुश हो ही जाऊँगा eventually. ऐसा था. But it doesn't work that way. And then they use you and फिर वो अच्छा नहीं होता है. बहुत बार. Exactly. You cannot give the control of your life to somebody else. Exactly. This if I connect this to relationships, ये ऐसा होता है कभी कभी कि once you are in a relationship and if a person is very dominant कि मैं ऐसा कर वैसा कर, तो उसमें you should not tell कि okay the boy will only decide, the girl will only decide. ये वो. It's a 50-50 thing. हाँ, It's a mutual thing. Correct. And मतलब मैंने अभी की तरह तो पढ़ा था. It's like कि कोई भी relationship, okay, you have to give your 50-50, but it cannot be 50-50 at all times. Correct. So some days it's going to be like I am really tired and I cannot give my 50%. I can give my 20%. So the सामने वाला will give his 80%. But when someday he is not okay, so then I'll have to go the extra mile. So it's never 50-50. Some days it's going to be low for you, some days it's going to be low for them. But you have to work together. It's a mutual thing. It's not one-sided कि भाई एक बंदा जो बोल रहा है या एक बंदी जो बोल रही है वही करना है. It's what you do mutually. And effort should be from both sides. It's correct. The one-sided कुछ नहीं है यार. I mean it's you're in a really bad place if it's only one side. Or if you have to beg, the other person to show some affection or to be seen, if you have to do things to make them notice you, it's not worth it. It's that just is never worth it. Totally not worth it. तुम अपनी self-respect किसी और के लिए कच्चे के डब्बे में डाल रहे हो. So what according to you is an ideal relationship? ऐसा कोई ideal relationship But फिर भी मतलब according to you मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कोई मैं main broad concept में नहीं बोल रहा, तेरे हिसाब से. Okay. So I think mere according it's going to be when both of them are really understanding of each other and when you respect each other's boundaries. That is very important. You have to learn to respect the other. You have to understand कि ऐसा कुछ होता है ना कि कुछ लोग वर्ड्स में इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते but उनके एक्शंस एवरी सिंगल थिंग दे डू एक्सप्रेसिव कि हाउ मच यू मीन टू देम. समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो कि ठीक है दिस पर्सन इज नॉट वेरी वेरी एक्सप्रेसिव but you have to notice कि छोटे छोटे actions that he is doing for you or she is doing for you, they literally scream कि I love you in actions. It's not in words but in actions. So you have to be understanding of each other. Respect होनी चाहिए. The best thing is in a relationship when you can be yourself. जब आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं इसको सामने बोल रही हूँ कैसे रिएक्ट करेगा. Correct. That is the best thing. You don't really have to think what you're going to say. Correct. उतना जब comfort होता है I think that's बाकी सारे सेकेंडरी फैक्टर. हाँ, बाकी सारे तो आई थिंक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. इसको ये चाहिए तो उसको वो चाहिए, उसको ये चाहिए, तो दैट इज ओके, दैट तो होता है. बट हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू सेड कि यू हैव टू बी योरसेल्फ. वरना इट इज कि यू आर ट्राइंग टू सेव द रिलेशनशिप बाय बीइंग समबडी एल्स. But it is not actually helping the relationship. It's going to end anyway because then it's superficial. It's not real. Correct. But at some point, if we be somebody else just to save the relationship and then again we come back to ourselves, That's not. That It doesn't never work? happens. No, ideal है ही नहीं. just asking, man. See, when you're see, this is very basic. Okay. So when you're like pretending to be somebody, or you're trying to change yourself, it is superficial. मतलब that person likes a part of you that is not even real. That is Okay. not you. Got it. Okay. Ah. So what a real relationship, what true love is you are accepting the person the way they are with all their flaws, with everything. Okay. So when you're trying to adjust to them, you unko even if you don't like certain things, you will say that you like them because it will make them happy. So it's like you're making them like a part
of you that is not even real. Okay, yeah, I totally understand. समझा? हाँ. So that doesn't ever work out, you know. Hmm. Then it's not even true. It's not even a Correct. true relationship. It's not even true love if you're not real. So it should be very transparent and honest. कि Yeah. if it is something it is bothering you or you are liking it, you should say it. कि हाँ ऐसा है, or else हाँ you Work said. your differences out. So it is important to keep communicating and. Terry, I think, sorry to cut you. Yeah. Lekin I think the major two factors to work any relationship, whether it's between your parents, it's between siblings, it's friends or in a relationship, is communication and forgiveness. Okay. सबसे पहले तो you need to communicate. आप नहीं ये कर सकते कि अज्यूम कर सकते कि सामने वाले को पता होगा. अब तू तेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्यों अज्यूम करूँ? मतलब मैं अज्यूम करूँ, मैं कुछ गलत भी अज्यूम करूँगी. ठीक है, अज्यूम नहीं कर सकते हम कि अंदर क्या चल रहा है. So you have to be very vocal with what you are feeling. कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, let's figure it out together. Second is forgiveness, is because हर इंसान से गलती होती है यार, come on. But if you keep holding on to every single mistake, then it is bound to end. Correct. You have to learn how to forgive and let go. Yeah. उसके बिना चल ही नहीं That is सकता. very important because I feel once a person does a mistake or something, that creates an impact for the other person and it stays. Like अभी कुछ किया किसी ने and he said sorry and sorry मतलब it हो गया, solve हो गया. But when this happens मतलब next time जब वो मिलते हैं वो चीज़ रहेगी इसके दिमाग में and he or she will be a little bit कि more soft or मतलब ऐसे कि more defendant कि हाँ कुछ कर सकता है ऐसा एक हो सकता है. So that stays I feel. हाँ you should forgive. I am not saying कि you should not, but if you do a mistake ना it can create that mentally. कि हाँ, क्योंकि हम लेट गो नहीं कर पाते. मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है, ड्रॉ लाइन टू योर पास्ट. एक बार तुम ठीक है, फाइट हुई है, अगर गलती हुई है तुम बैठो सॉर्ट करो. आगे जब झगड़ा करो दूसरी बात पे झगड़ा, फिर वो पीछे वाला नहीं आना चाहिए. वो होता ही है. पीछे वाला नहीं आना चाहिए कि तूने उस टाइम पे वो किया था, तूने इट्स डन, इट्स गॉन. Correct. And it cannot be changed. अब वो हो गया है. Exactly, it's done. तुम क्या ही कर सकते हो उसके बारे में. तुम या तो उसके ऊपर क्रिप करके झगड़ा करके पूरा रिलेशनशिप खराब कर सकते हो, और यू कैन चूज टू लेट गो दैट पार्ट एंड अंडरस्टैंड कि ठीक है या ठीक है यार तुमसे भी गलती होती है. अगर कोई दो जन रिलेशनशिप में तो मेरे से भी गलती होगी और सामने वाले से भी गलती होगी. तुम हर छोटी छोटी बात पकड़ के रखोगे तो नहीं होता. यू हैव टू लर्न. That is very important कि you should know how to communicate and to forgive. मेरे हिसाब से तो आई थिंक दीज आर द टू कीज नहीं, I फॉर totally एनी agree. रिलेशनशिप. हाँ and communication is very important. वो तो मैं बोलता हूँ क्योंकि जैसे तूने बोला कि you cannot assume things and ऐसा होता है कि there are मतलब relationship में ऐसा हो जाता है कि one person is hoping कि the other person will understand directly. हाँ तो वो वैसा हो जाता है and then the other person does not understand, it leads to a fight and फिर तुम चिड़चिड़ करते हो कि तेरे को समझ में क्यों नहीं आता. तू बोल ना बहन, बोल ना तो समझ आ जाएगा. बहन नहीं बोल सकते. हाँ लेकिन ठीक है. ठीक है, तो मेरे से मुंह पे आ रहा है. हाँ समझा. हाँ लेकिन हाँ ये चीज़ मैं अग्री करता हूँ कि ऐसा होता है कि बट इट्स लाइक कि इधर सामने वाला थिंग्स कि अभी यू आर इन अ रिलेशनशिप ठीक है तो यू शुड नो मी ना. तुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ यार जो सब जैसे देखा है पता है वो ऐसे सब. पॉपुलर जो होता है. बट इवन यू नो दिस थिंग कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी सामने वाले को ऐसा लगता है कि ही नोज मी, इसको समझ जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ तो ये खुद से कर देगा. बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि इसको पता हो ये हो. और आई थिंक दैट विल रूइन इट मोर क्योंकि उससे सोल्यूशन नहीं आएगा. ठीक है सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये बैठा रहेगा बोलेगा क्या करूँ मैं अभी रुकता हूँ इसके लिए. ऐसा और तुम लेके बैठोगे इसको क्यों नहीं पता है. हाँ ना इसको पता क्यों नहीं चल रहा है. ऐसा थोड़ी होता है. नहीं यार ऐसा इन जनरल इनफैक्ट ऐसा अगर मतलब ऐसा कितना बार होता है ना कि एक इंसान गुस्सा है कुछ चीज से, सामने वाले इंसान को पता भी नहीं कि क्या हुआ है. हाँ. और फिर वो बात भी नहीं करेंगे. हाउ डू यू नॉट नो व्हाट हैपेंड, व्हाई डू यू नॉट नो. तुझे अपनी गलती भी नहीं पता. ठीक है तू बता दे, वी जस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन. इमैच्योरिटी है ये कि लेकिन वो यू नो वो होता है व्हेन यू बोथ आर इन अ ग्रोइंग फेज. और ये ऐसा एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्यूटेस्ट पार्ट कि तुम दोनों सीख रहे हो ऐसे करके. फिर एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर टुगेदर यू फील लाइक कि हाँ ओके वी वर्कड इट आउट. बट इट डिपेंड्स. अभी आई फील कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज ओवर समवन अभी एट दिस पॉइंट. मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिलेशनशिप तो कैन यू डिसाइड नाउ कि यार यही मेरे साथ रहने वाला है आगे.
at this बहुत point. मुश्किल है. वही. You can never be sure Yeah, कि correct. ये It is so difficult to give a commitment. ठीक है. You have to follow your heart at the end. And there are factors which will change later on. मतलब कुछ ना कुछ आएगा, ये होगा वो होगा. तो स्टार्टिंग में if it looks good कि हाँ तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, मजा आएगा, ये होगा, वो साथ में रहेंगे, ये रहेगा. बट you should be prepared कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सब भी हो सकता है. I think love is not all unicorns and rainbows. It's also like the dark and deep days. Correct. So and I think काफी लोगों को यही misconception है कि once you're in a relationship everything is goody, everything is going to be nice. It's not. It's in fact I feel like it's not going to be. शुरू का phase very exciting. मतलब मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मैंने जितना देखा है, पता है लोगों को, और मैंने जितना सुना है कि शुरू में everything is really exciting. So they expect things to be exciting forever. There's going to be days where it does not really excite you that much. Okay, but those are the days where you have to get to. That's like a testament of your relationship. It tests you. You have to get through that. And people think ki it's all good, so even if you have a fight, they're going to be like, I don't want to be with you anymore. That's not how love works, right? Right. So even one fight can ruin the whole relationship. Yeah, it's about getting through it together. Ki how strong is your love? Ki can it Right. pass these obstacles? It's a very broad concept actually, relationship उस पे तो. And हाँ, of course कि if you are not getting through together, फिर ऐसा हो जाता है कि there is something wrong between us. It's not you versus them. It's you and your partner versus the problem. Correct, हम correct. आधे टाइम यही करते हैं, it's you versus me. It's not you versus me. It's together versus the problem. Correct. Because तो you are हाँ, already together. हाँ. या तो जब आप मतलब उस वे से व्यू करने लगते हैं तो then you're on the same team. You're not against each other. Correct. And also I feel the people around you when you are in a relationship matters. कि if somebody is receiving some advice कि यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, and how much influence it is creating on the other person, that also matters. क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी कुछ तो कान भर दिए इसके ऐसे, तो फिर it creates that distance कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, weird क्यों behave कर रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. अब मैं तो बॉयज स्कूल से हूँ तो फिर जब आया ट्रांजिशन था तब ये सब चीज़ें देखने को बहुत मिली. पता चला ना कि यार ऐसा भी कुछ होता है. पहले तो ऐसा ही था कि स्पोर्ट्स लाइफ में स्पोर्ट्स है, पढ़ना है और बस टीचर्स पहचान ले उतना पढ़ना है और बस ठीक है. फिर जब गया तो मुझे आइडिया आया कि ओके ऐसा है. और जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल ही बोलते हैं उसको भी, जो जूनियर कॉलेज से जब मेन कॉलेज गए ना, दैट वाज आल्सो डिफरेंट ट्रांजिशन. तो उसमें तो ऐसा था कि पीपल आर लाइक यार करना तेरे को जो करना है, आई डोंट, मतलब तू तेरा कर, मैं मेरा करता है. तो ऐसा ही हुआ कि द बॉन्ड इज देयर, बट बिकॉज पीपल आर सो बिजी इन देयर एक्टिविटीज, इट फील्स लाइक यार एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज फॉर देमसेल्व्स ओनली. And you have to be there for Of course. yourself. तुम किसी पे पूरा जीव डालोगे और खुद पे नहीं डालोगे, क्या मतलब. इसलिए आई फील लाइक लाइफ में लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मेरे लाइफ में है पर्सनली पूजा. मी एंड पूजा वी बीन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइक 6th स्टैंडर्ड से. अच्छा. एंड और ऐसा है हमारा हमेशा से रहा है कि हम ऐसा नहीं कि हम रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, महीनों में एक बार मिलते हैं, बट नथिंग चेंजेस. सो यू डोंट रियली हैव टू पुट एन एफर्ट कि बहुत ज्यादा ट्राई करे टू कीप द फ्रेंडशिप. एफर्ट डालो, मैं तो उस सेंस में नहीं, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है कि दोस्ती मेंटेन करने में. बहुत तो है, मतलब हम सालों बाद भी मिल जाएंगे ना, महीनों बाद भी मिलेंगे ना, वही फिर फुल पता है ये हुआ एवरीथिंग इज you don't need to maintain it because you know कि यार ये है मेरे साथ. मतलब लाइक वी सीन ईच अदर थ्रू ऑल फेजेस. and that ट्रांसपेरेंसी कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को सब बताते हो. मतलब ऐसे नहीं कि तुमको बताना पड़ रहा है इसलिए बता रहे हो, कि इट कम्स आउट कि यार तुझे पता है ऐसा कुछ हो रहा है. भले वो उस टाइम पे नहीं हो कि इस टाइम पे वाले कि वो मुझे महीनों बाद बताएंगे, बट ठीक है यार. इट डजंट मैटर कि तू कब बता रही है, एंड तू भी वो वेट नहीं कर रही कि ये आके मुझे कुछ बताएंगे ऐसा. वो कैसा हो गया, वो हुआ होगा ऐसे. अब you spoke about low maintenance. So what is the importance of monetary objects in a friendship relationship और ऐसा, क्योंकि ऐसा रहता है कि बहुत बार people are impressed by gifts, surprises. That is not true friendship. फिर वो सही दोस्ती है ही नहीं. But is it कहीं ना कहीं required? At some point I feel it's a part of it. Gifts in general मेरे को expensive. I am personally a person की
तुम मेरे लिए अगर 5 लाइन लेटर भी लिखोगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल टू मी देन a $10,000 gift. Because you appreciate the effort. Emotions and efforts over prices. See, gift is personally a way of expressing. Okay, it's a way of showing that you are important to me and I appreciate you. That's the point of a gift. Price tag of the gift shouldn't matter. Yeah. ये इतना, she got me a very expensive gift or she got me a very low key gift. Doesn't matter. The emotion matters. Yeah. मेरे लिए तुम then the thing with this is कि तुम मुझे अगर कोई भी गिफ्ट पकड़ा दोगे, भले वो 10,000 का है, ठीक है, सपोज you haven't put in effort, you used your money, you got me a gift, I appreciate that very much. It's not like I'm not appreciating, Of course. but you're writing me a 5-line letter, you took your time out to think about me, to write something about me, you took that effort. Isn't that what's Exactly. like the I key think to the more more it is personalized ना, the more emotional it is. Because अभी gifts ऐसे भी आते हैं जो बहुत ऐसे खुद का नाम रहता है, ये रहता है, and you write a letter, the way you said, you create a craft box. ठीक है, somebody is not good in craft and design, he will order it, of course, but he'll put your images in it. So Yeah. that is his effort. Somebody is thinking of you यार, वो अपने normal schedule से time निकाल रहा है to do something for you. That's That the really thought matters. that matters. Because I've seen कि ऐसा भी होता है कि when you have अभी sometimes if you're talking about expensive gifts, it all depends कि financially तुम कितना ये हो, हाँ, but that should not be something to represent you as a person. Exactly. हाँ, that is- फिर कितनी बार होता है कि सिर्फ शो ऑफ के लिए हो जाता है. कि हाँ मेरे पास तो ये है, मैं ये दे देता हूँ, वो दे देता हूँ, but ठीक है, जिसके पास है वो कर रहा है, वो भी एक effort ही है. Yeah. मैं ये नहीं कहती मैं अप्रिशिएट नहीं करती, बट फॉर मी अगर तूने मतलब इन जनरल ऑफ मॉनेटरी कॉन्सेप्ट पूछा, तो मेरे लिए एक हैंड रिटन लेटर इज एलीट. आई कैन नॉट टेल यू, मैं खुद लिखती हूँ क्योंकि हाँ. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. हाँ. आई डोंट नो व्हाई बट आई लव द फैक्ट कि मेरे वजह से कोई स्माइल कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. Same. सो मैं अगर मेरे क्लोज फ्रेंड्स जिनके अगर बर्थडेज होते हैं, हाँ. इन जनरल मैंने अभी किया था, मैंने अपने मॉम डैड के लिए और दीदी के लिए भी लेटर लिखा. इट वाज जस्ट अ लेटर ऑफ अप्रिसिएशन Okay. to show how much I हाँ. appreciate it. So I wrote them letters and I gave it to them. मैं अपने दोस्तों को देती हूँ या birthdays पे देती हूँ. So it's like, and obviously it creates such a huge impact on a person. It's because they feel good about themselves. Yes, And that that is is so important when you make somebody feel good about themselves. And I know, I've seen कि when somebody is you talked about letter, अभी तो सब messages भी लिखते हैं, message डालते हैं, तो I've seen this कि when the person reads it, he or she reads it through the other person's point of view, and then suddenly that smile comes I because know. of some words used. You're looking at yourself from somebody else's point of view, and then you realize कि oh my god, they think so highly of me, or they think they are appreciating me. Then खुद का एक सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है कि and then you're so happy कि you also want कि you put in a little extra effort for them also. Correct. That is. And that's how you increase your bond. That's I love it. When people feel good about themselves, and if Yeah. I can help do that, that's everything to me. Which is why मेरे को मतलब मुझे content creation करना था. अभी I'm not. अभी मेरे पास actually उतना time नहीं होता, उतना motivation नहीं होता, because if you want to create content, there's just so much that goes behind it. मेरा only one like motive था content creation is I wanted to create a safe space for people, so when they look at my account or when they just view my account, they can feel like they can be themselves and they can feel safe कि ठीक है यहाँ पे I can be myself, and they can learn कि Like you want to make an environment where yeah, they can come and. it's a positive environment, no space for pulling people down. That is one really good thought. But I try to do that via stories. अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो इतना I वो think हो नहीं even पाता. small efforts like a story matters. And because- even if you like one person impacts through it, you Yeah. feel like you've achieved everything. मेरे साथ ऐसा हुआ था. There's a friend of mine in college, okay, and he literally उसने बहुत बड़ा मैसेज डाला था, पता है कि thank you so much for your content, because उसकी वजह से मैंने अपने मॉम डैड से I started expressing my relationship with them has become so good, and बाकी काफ़ी चीज़ें थे, and I was like shit, I have done this. You feel so good, you feel so proud. And even if it reaches one person, Yeah. कि अगर if it's helped make their life even a little better, I think you've done your job as a content creator. And that matters a lot. You talk about stories.
you know it has become so simple अभी कि तुम बस you put a story with something good image, a good song, people get attracted to it, and if it helps them, it's well and good. I used to create motivational stories. People are like बस ना कितना motivation देगा, तो I was like कि it is not affecting me anyway कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. फिर I put a poll कि ask me a question. So there I found people who mentioned कि I saw this story of yours and I was not in a good mood that time, and it really helped me, and maybe a little bit, not it could have not created a very big impact in his life, but it matters. It helped him, and like that there were 2-3 messages more, and people usually were reading it during their exams. So it is going to help, even if it is temporary, it is going to help for that moment. So I felt it such a good way. So I created a story, I created a motivational or a highlight page कि now anyone who comes at my account, he can see that story whenever they want. So That's so nice, honestly. Somebody was in the bad mood and they smiled because of you. What else? I mean, that's the biggest achievement. exactly, and I love this. If I get a chance कि I can do this every day, I'll literally do this every day. सच्ची में फिर doesn't matter कि लोग कितना ही बोले अरे बस करो ये करो. हाँ. It doesn't matter to me. But I used to never listen to people मतलब ऐसे opinions which are like I feel कि okay उन्होंने बोला ठीक है okay fine, but I feel I should put it and I don't care. It's not hurting anyone. If it's hurting anyone, I'll stop putting. But मैं ऐसा कुछ नहीं डाल रहा. मैं जो डाल रहा हूँ एकदम positive है, motivational है. People are like इससे कुछ नहीं होने वाला. I'm like ठीक है ना, तू नहीं हो रहा तेरे लिए तो नहीं हो रहा तेरे लिए मत देख, कोई बात नहीं हो रहा ना छोड़ दे. Seriously. हाँ, it's like जिसके लिए हो रहा है ना, and you never understand somebody is getting benefited, and maybe you don't know, you're not aware कि he is getting benefited, but ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है बैकग्राउंड में. जैसे I started this podcast ना, तो तब मुझे आया ना कि यार I want to be a part, तब I felt कि there are people who are interested कि ये करना है, and you appreciated me कि ऐसा है. There are people who are like यार it really takes so much courage to start this, ये वो ऐसा, तो I felt like wow. मैंने जब स्टार्ट किया तब ऐसा नहीं था कि आई वांट कि मतलब ऐसा कि पीपल का ध्यान अटेंशन के लिए. अब इसमें इट इज नॉट बेनिफिटिंग मी एनीवे. आई जस्ट लाइक टू टॉक एंड आई फील दैट देयर आर पीपल हु वांट टू टॉक, who are waiting to be listened to. तो that is the motive and it worked. It's such a good initiative. मैंने देखो शुरू से बोला था and it's like such a good place for people to just talk. Exactly. तो वही, and if people are enjoying it and they are liking it, well and good. Once ऐसा हो जाता है कि people there will be criticism, there will be this, and I know कुछ ना कुछ तो होने वाला है, but it shouldn't stop you from creating. Exactly. If you are doing good and you are confident, you shouldn't stop. You should never there stop. are people, there are many people who are on the verge of like चल मेरे पास ये स्किल है but I don't want to start because people will be like यार ये क्या कर रहा है. सोचते चार लोग क्या कौन है ये चार लोग, कुछ बताओ कौन है ये चार लोग. नहीं ये होता है यार सच्ची. अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे. अभी जैसे ठीक है कभी कभी कुछ रीजंस रहते हैं कि दे कांट गिव सो मच टाइम, या फिर घर पे ऐसा कुछ है, कुछ रीजंस रहता है. बट आई फील इवन इन द स्मॉलेस्ट वे पॉसिबल, इफ यू आर स्टार्टिंग ना, डू इट. यू नेवर नो अभी कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ. अगर तुम्हें पसंद है ना कोई चीज एंड यू आर होल्डिंग ऑन इट, दैट्स द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू. सच्ची. हाँ मतलब ऑफ कोर्स तुमको अगर हेलीकॉप्टर राइड चाहिए एंड यू आर होल्डिंग ऑन इट, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, दैट्स डिफरेंट. But it's something you can do. But Yeah. you're stopping yourself thinking कि you know क्या बोलेंगे लोग. एग्जैक्टली. तुमने क्या देखा यार? सी मेरे को ऐसा लगता है कि कल किसने देखा है. तुमको नहीं पता कल क्या होगा. जो हो चुका है तुम उसको चेंज नहीं कर सकते. तो what do you have right now? करेक्ट. This moment is never going to come back. So Exactly. just keep doing what you're doing. If you like, if it makes you happy, do it. Do it. घंटा फर्क पड़ता है कोई चार लोग क्या बोलते हैं. हाँ भाई तो. When you realize कि you are not the opinion of somebody else, you're it's And you could set an example, you know. You never know कि we feel कि when I started, there people are like कि it is not a, I said कि it's not a professional platform. It is just a normal ऐसा वैसा. I'm not doing this. But once people started listening and they're like, okay, this is nice. तो ऐसा होता है कि यार ये सुनता है, ये बात करता है, he's more into that talkative type. तो I understood कि we can create an example. हमें लगता है कि वी आर नॉट दैट ग्रेट कि यार अभी तो हम वी आर स्टडीइंग, लोगों ने इतना एफर्ट दे दिया, ये क्या है. दिस इज ऑल्सो समथिंग कि जिससे होता है सेल्फ डेप्रिकेट करना बंद करना. हाँ वो होता ही है. यू नो पीपल डोंट फील कि आई एम सो गुड एट, हाँ, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट स्टार्ट, एंड
they don't even end up doing anything. मतलब in this part, and that will create a regret and nothing else. It will be like यार मैं करना चाहता था but मैं कर नहीं पाया. हाँ, you take your time if you want, you plan out things. थोड़ा सा तुमको चाहिए ना, and ask for help. I think it is very difficult to ask for help. People feel like कि यार मैं भी इसको क्या पूछूं, मैं इससे बात नहीं करता, ये नहीं करता. नहीं बोलेगा, मजा नहीं, क्या होगा, नहीं बोलेगा वही. So I feel कि you should do 100%. You should not stop. Anybody who is watching this, just go for it. जैसे लगेगा फेल होगा, but at least तुम्हारे मन में रिग्रेट तो नहीं होगा कि shit मेरे पास opportunity थी लेकिन मैंने try नहीं किया. Exactly. Until and unless you don't enter na, you will not understand if it was good or bad for you. Even if it was bad, you have that time to okay, chal, I'm not continuing here. ठीक है ना? तुमको पता पड़ेगा okay, this I've tried this is not for you. Exactly. And who you are committing for? You are committing for yourself. Exactly. It is not कि तू किसी को बोल रहा है कि ऐसा ऐसा. Even if you say कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा था कि मैं इस दिन पे ये करने वाला, वो नहीं हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है? तो हम actually मुझे ये चीज पता चली कि हम हमारे माइंड में ज्यादा सोचते हैं जितना वो सामने वाला नहीं सोचता. Exactly. हम ओवरथिंक कर लेते हैं. Exactly. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला ऐसा बोलेगा या ऐसा सोचेगा, and then जबकि ऐसा नहीं रहता है. एंड हाँ ठीक है, फॉर अ पॉइंट ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसा लगे, बट आई डोंट थिंक ऐसा रहता है. ज़्यादा सोचना नहीं है. इफ़ यू फील इट, से इट. इफ़ यू वांट टाइम, टेक इट. सब है यार, तो भी हम नहीं कर पा रहे, ऐसा है. और ऐसा होगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, 4 लोग आएंगे तुमको नीचे खींचने. मैं बोल रही पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे पेज पे कितने आते हैं कहते हैं कि ये क्या है, बंद कर. ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले तो आएंगे, वो पहले आएंगे ही. बट देन इट्स as long as you know in your heart कि what I'm doing is making me happy, it's not harming anybody, it's something that I want to do, continue doing it. फिर फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग क्या जैसे मैंने पहले बताया, they are not coming to pay your bills. वो तुम्हारा घर नहीं चला रहे. Exactly. They have no control over you. तुम उनको हम सोसाइटी को unnecessary control दे देते हैं over ourselves. Exactly. वही ना. To choose for us, to think for us. And once we start listening, they are like okay, अभी मैं जो भी बोलूँगा he'll do it or she'll do it. And फिर वो ऐसा हो जाता है, हमारे माइंड में भी ऐसा हो जाता है कि ठीक है अभी वो बोल रहे हैं तो सुनते. But there is something about you कि you have a thought process, you have an idea, and if you don't say it, nobody is going to recognize it. And I feel कि you should go explore यार, do. मेरा तो ऐसा है कि if you tell me ना, अब मेरे को समझ मन हो गया कि यार ये चीज़ ट्राई करनी, I want to do it. मैं फिर उसमें डिले नहीं करूँगा. हाँ, अगर मेरा कॉलेज है, कुछ मेरा मिस हो रहा है उसके लिए तो नहीं. बट आई फील लाइक अगर मैं नहीं करूंगा ना, फिर मैं नहीं करूंगा. वो ऐसा हो जाता है. और ऐसा ही होगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो बाद में कि जॉब के बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे. अरे वो कब पता है बाद में. तुम 70-80 साल में हॉस्पिटल बेड पे होगी और सोचती होगी शिट मेरे पास था वो, काश कर लेता तो लाइफ कुछ और होती. You know, your regrets have no value, your actions. Exactly. एक बार इन योर लाइफ यू से कि काश, वो काश वर्ड अगर आ गया ना लाइफ में, तो देन that's the worst regret. यार. टाइम गया हुआ वापस नहीं आएगा यार. Right. You should keep exploring. And अभी एक एग्जांपल है, अभी ये भी you also create content, I have also started. So we know कि कैसा है, क्या है, and at the end of the day, if it is making a person happy, ना, that is the most happiest thing I can. And it's like serotonin for you. ऐसा एक boost होता है कि एक इंसान, अभी तुमको पता पड़ गया, तुझे ऐसे 3-4 ऐसे पॉजिटिव एकदम ये आए, पता है मुझे एक हाल है कि उसने बोला कि you know this is, it's like wow, I can do this, I want to do this, I want to do more of this. Yes, it motivates you and it tells you कि यार चल और कुछ करते हैं, और कुछ करते हैं. Let's make it more interesting, let's make it, you know, something कि people can connect to. Exactly. And I feel that is the best way. अभी I started with a single camera thing. Now I have 3 cameras. And this is because people appreciate it. I was like चल ना कुछ try करते हैं. And I'm not going out of the way to do this. ये मैं देख रहा हूँ मेरे पास क्या फैसिलिटी है, मैं क्या ये कर सकता हूँ. अब मैं किसी पे रूल नहीं करूँगा, मम्मी पापा को ये नहीं बोलूँगा मम्मी ये चाहिए वो चाहिए. दे विल बी लाइक तू एंजॉय कर रहा है ना, ये कर रहा है ना. इट डिपेंड्स ऑन माय पर्पस. अगर मेरे को मॉनेटरी पर्पस के लिए चाहिए तो आई माइट बाय स्टफ, एंड एक टाइम पे शायद मैं कर भी लूँ, ऐसा है. बट इट इज आई एम एंजॉयिंग ना, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दैट एफर्ट. इफ आई वाज नॉट एंजॉयिंग ना, अभी इट वुड हैव बीन द सेम वन कैमरा एंड ऐसा. आई लाइक एंड आई थिंक ऐसा होना चाहिए. हाँ, and you've grown also so much. अगर तूने 4 एपिसोड किए, बीच में 5 एपिसोड किए हैं, तो you also learned so many things. तुम 5 लोगों के साथ बैठे, एक चीज तो सीखी होगी. Imagine it's like an opportunity, you're learning 5 different things. Exactly, and that because all people are different ना, I get something from some person. मतलब be it anything, at least I know कि यार कोई ऐसा भी सोच सकता है, कोई ऐसा भी कर सकता है. Your horizons expand. हाँ,
एंड नाउ बिकॉज आई नो ना दैट थिंग इज इन माई माइंड कि यार इसने मेरे को ये बोला था, एंड वेन एवर दैट सिमिलर थिंग कम्स अप मेरे को ये याद आता है. एंड आई लाइक एंड आई वांट कि पीपल कम फ्रॉम एनी फील्ड, एंड आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एनीवन कि कोई भी हो. दैट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स गुड. हम भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं. हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वी आर मीटिंग एंड इतना हमने बात किया. ऐसा लगेगा भी नहीं कि इट इज द फर्स्ट टाइम. म्यूचुअल थे बट हाँ म्यूचुअल्स थे एंड ऐसे ही, बट स्टिल स्टार्टिंग में इट इज लाइक वेरी ऑकवर्ड एंड ऐसा रहता है ना कि यार क्या बोले, या पहली बार है. हाँ, या तो पूछ लो सब कुछ. लेकिन ये जो है ना ये ऐसे ऑटोमेटिक, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो मोर इनटू ऑल दिस एंड आई एम ऑल्सो. शायद अगर मैं कोई इंट्रोवर्ट होता शायद मुझे टाइम लगता. तू इंट्रोवर्ट होती तो शायद वो, बट ठीक है आई एम वही तो बट इंट्रोवर्ट को भी हम एक पॉइंट के बाद है ना बुलवा सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन वो किसके साथ है. तू जैसे यू आर एन एक्सट्रोवर्ट इन ऑल इंट्रोवर्ट्स ना, इवन आई एम एन एक्सट्रोवर्ट इन ऑल इंट्रोवर्ट्स. कॉलेज में मेरा भी ऐसा ही बहुत रिलेट करते हैं. हाँ, तो आई नो एंड इवन दे आर फाइन विद मी, इवन आई एम फाइन विद देम. दे नो कि ये बंदा इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसे पूरा घूमता है. वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते स्टार्टिंग. उनके लिए काम इजी हो जाता है क्योंकि मैं आई एम लीडिंग द कन्वर्सेशन. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बड़बड़ करती जा रही हूं, मैं सिर्फ भी हाँ, सुनना एवरी लिसनर नीड्स अ लिसनर टू. करेक्ट दैट इज देयर. और समटाइम्स यू नो जब कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, जैसे तूने तेरे पिछले पॉडकास्ट में बोला था, मैंने तुझे मैसेज भी किया था कि जब कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है समटाइम्स दे डोंट वांट, उनको पता है कि उसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उसका आंसर क्या, बट दे डू नॉट वांट, वो तुम्हारे पास सॉल्यूशंस के लिए नहीं आए हैं. दे जस्ट वांट टू बी हर्ड. सो जस्ट बी देयर फॉर देम, लेट देम बी देमसेल्व्स. उनके बाद दे विल गेट अप, उसके बाद एंड दे फिगर इट आउट. You need a listening ear. Even a listener needs a listener. Yeah, that is very important. क्योंकि ऐसा है कि हम यहाँ इतना बड़बड़ करते हैं पर कोई सुन रहा है वो भी तो चाहिए ना. हाँ. I'm a very opinionated person, पता है. Same. So I will have opinions about everything, and I'm very firm with what I stand for. Same. But in my case, it is like कि I want to listen to everyone. मतलब इवन इन योर केस इट इज लाइक दैट. मतलब अगर हम 10 लोग बैठे हैं ना, मैं सबके ओपिनियन लूँगा, लेकिन अगर आई फील कि मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा है ना, तो आई विल नॉट एनफोर्स माई पॉइंट, बट आई विल मेक देम रियलाइज बाय एन एग्जाम्पल कि मैं क्यों ये पॉइंट बोल रहा हूँ. मतलब इट्स लाइक कि हाँ, और अगर मुझे किसी और का पॉइंट अच्छा लगता है तो आई ट्राई टू मर्ज दोस कि यार ऐसा. See, that's the thing. You are open to accepting. मेरे आजू बाजू मतलब ऐसा बहुत बार होता है. People are not ready to accept my point of view. या in general किसी और का point of view. उनके दिमाग में सेट है. So a lot of people do not like the fact कि you know somebody is telling them. Yeah, that I have very open and liberal thoughts because obviously society अभी तक इतनी evolve नहीं हुई है. And I personally मेरे काफी ओपन थॉट्स है कि आई विल एक्सेप्ट एनीबॉडी द वे इट इज. पीपल को एक्सेप्टेबल नहीं होता. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट पीपल डू नॉट लाइक इट कि यू नो आई एम जस्ट सो. हाँ, मतलब आई थिंक पीपल आर लाइक कि समटाइम्स मेरे को पता नहीं उनके इमोशंस, बट सम पीपल डोंट लाइक इट एट ऑल. आई टेल यू, ऐसा अगर तूने यू स्टार्ट ना, तूने बोला ना किसी को ब्रो ये मत कर लाइक मैं इन जनरल बोलूं भी कि दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. They will come question me and they'll come on me कि नहीं ऐसा नहीं है. फिर वो झगड़ने लगते हैं ना, लाइक ठीक है झगड़ने में झगड़ सकती हूँ बिल्कुल. And then sometimes I feel कि just leave it. Some people are just not worth the energy. Yeah, that's what. तुम हर जगह अपना point prove करने का कोई मतलब ही नहीं है. And I had this bad habit. I'll call it bad habit only. कि I used to give my energy to everyone to just prove a point. हाँ कि अरे तू नहीं समझ रहा, रुक. एंड व्हेन आई रियलाइज कि यार इस पे ना इसको इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आई फेल्ट लाइक आई एम मोर पावर्ड. मतलब मेरे पास अभी भी है वो, आई हैव सेव्ड दैट एनर्जी एंड आई विल यूज इट समवेयर एल्स. फॉर समथिंग एल्स. या फॉर उसको समथिंग अगर बेटर समझना होता तो वो पहले ही समझ जाता. इतना बहस करने की जरूरत ही नहीं थी. Exactly. मेरी बहुत बैड हैबिट थी. मैं भी तेजी से मैं, और मेरे को ऐसा था कि मेरे को अभी तक ऐसा है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. सेम इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस. या आई हैव दिस थिंग वेयर आई थिंक आई कैन फिक्स पीपल. बहुत बुरी सेम सच्ची. Such a bad thing. इतना खराब है. मतलब आई वाज लाइक मैं जाके बोलूंगा कि ब्रो दिस इज नॉट गुड, और मैं आई विल स्पिट फैक्ट्स एंड आई विल बी लाइक कि डोंट डू दिस, ये मत कर, ऐसा मत कर, एंड दे विल लिसन टू मी. यू नो फॉर अ पॉइंट आई फेल्ट कि ये होगा. आई फेल्ट कि यार होगा, क्यों नहीं सुनेगा कोई, मेरे पे है वो पावर. फिर मेरे को जब पता चला ना कि पीपल आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी, तब आई फेल्ट लाइक ओह शिट. हाँ मतलब ऐसा है इन इमोशनल सेंस आल्सो. सो मैं व्हाट आई थिंक व्हेन आई से आई कैन फिक्स दैट पर्सन, why I do that. लेकिन मैं अपनी पूरी I mean I will be there for them, you know, if they then you will give your 100% effort. पूरा मतलब
I'll handle with care everything, and then at one point it's like it starts draining my own energy. Exactly. And you don't reach to a conclusion where that person is agreeing to you. Then I realize who am I to fix that Exactly. person? And what we feel is a fix shouldn't be necessary कि he needs that fix. Well, I'll tell you. Exactly. हाँ. True that. For- I'm learning from हाँ. this. ये मेरा bad point है. मेरा भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये गलत सिचुएशन में, बट एक्चुअली इज एंजॉयिंग इट मतलब अभी समझ, लेट्स टॉक अबाउट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ सिगरेट, ठीक है. अब वो फूकता है. मैंने इतने लोगों को हाँ, बोला है ना, मैंने भी- इतने पीपल वेरी मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं अभी भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी. हाँ. शायद बुरा होगा. It's simple. It's either the cigarette or me in your life. I will not entertain that. Correct. It's a death stick. I know it. It's not good for you. It's not good for people around you. You choose whether you want that cigarette or you want my presence. It's Exactly. simple. I don't know if it's a bad thing. I don't care. But that's alright. नहीं, दिस इज वेरी गुड. ये इन्फ्लुएंस अच्छा था. और लोगों ने किया है. नहीं करना चाहिए. आई फील कि मैं ये, अगर मुझे ये चीज बोलना है ना, तो मैं उन्हीं को बोलूंगा जो मेरे बहुत अच्छे. मैं उन्हीं को हाँ. बोलती हूँ. बाकी तो मैं बस बोलती हूँ कि दिस इज दिस. मैं तुमको बोलने का मेरा कोई ये नहीं है. तुमको सुनना है सुनो. बट हाँ. इट्स व्हेन मींस पीपल व्हेन दे आर दोस मतलब क्लोज वंस ना, तब मैं बोलता हूँ ऐसे. फिर दे कम अप विद द स्टोरी कि यार मैं ओकेजनली करता हूँ, ऐसा नहीं है, ये है वो है. एंड आई एम लाइक कि ब्रो तू करता है. वही. तो इवन आई हैड दिस हैबिट एंड आई successfully fixed 3 people. Actually, I will not call it fix again. It's not a fix. I think you should stop calling it a fix. I'm so sorry. You shouldn't call it a fix. हाँ, so we Heal people. हाँ, वही. So I tried it and 3 people got away from it, and 3 months later I found the same 3 people smoking again. So I felt कि Been there. I feel like कि यार it is कि just in that phase कि यार मैंने उनको motivate कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, and something happened in their life and they started again, and it's like कि okay, मेरा काम था बोलना. बोल दिया. हाँ, And there's मैंने बोल nothing दिया. more than I I can do shouldn't about it. waste my energy more and be like यार भाई वापस क्यों I किया shouldn't है let ये? it consume me. Exactly. और मैं वही करती थी पहले हम्म. कि अगर मैं किसी I'm being there for them, तो I let it consume me. तो फिर उनके लिए मैं सब, even if it's harming me, even if it's like draining my energy, नहीं यार मुझे हेल्प करना है किसी की. ठीक है हेल्प करो, बट यू शुड नो योर बाउंड्री. Exactly. दैट इज व्हाट आई एम लर्निंग पिछले साल. हाँ, वो होता ही है बहुत. व्हेन यू आर टू गुड ना, तब यूजुअली ऐसा होता है. टू गुड मतलब हाँ. टू गुड टू बी वांटिंग कि यू शुड नॉट डू दिस. Exactly. हाँ, तो यू विल ट्राई कि नो यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन, ये, बट दैट पर्सन बी लाइक आई रियली डोंट वांट दैट हेल्प. I don't want it. हाँ, आई एम हैप्पी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना. एंड एक्चुअली यू शुड लीव हाँ दैट पर्सन. लीव दैट पर्सन. तुम जिनको जो करना वो करके ही हाँ. रहेंगे. देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. छोड़ Correct, देना correct. चाहिए. तो इसी नोट पे हम एंड करते हैं. हमने बहुत ज्ञान दे दिया सबको. Yes, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है. आएगा कमेंट सेक्शन में. But I had a really good time. Yeah. And मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ हम कितने 1 घंटा 16 मिनट से बात कर रहे हैं. एंड उससे पहले भी हम बड़बड़ कर रहे थे वो कैमरा सेटअप करने में. हाँ, उसमें भी एफर्ट लगा. बहुत. अरे सबसे if you ever want to go shoot for a podcast, तुमको कैमरा सेटिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसमें पूरा दिमाग खराब हो जाता है. कभी वही. ऊपर करो, कभी नीचे करो, कभी आज करो, बहुत. सेटअप तो करना पड़ता है ना वो अच्छे से. अभी तू कंटेंट राइटिंग के बोल रही थी, तो तुझे भी तो यू विल रिक्वायर दैट टाइम ना स्टार्ट में कि ऐसा ऐसा करना चाहिए. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड नो क्लू कि मैं ऐसा एंड अप करूंगा कभी. मतलब कैमरा है मेरे पास, मैं लगा दूंगा. स्टैंड भी नहीं था मेरे पास. मैंने बोला ऐसे ही रख के मैं बात करूंगा. मैं ऐसे ही रख के हर जगह. हाँ. मैं बहुत शूट करती हूँ. मैं बहुत वीडियोस निकालती हूँ. हाँ. मेरा पूरा गैलरी उससे भरा हुआ वही. है. मैं कहीं भी अपना स्टैंड बना लेती हूँ. कहीं भी लगा के बड़बड़ चाहती हूँ. वो उसमें मजा आता है. उसमें ही बहुत. वही. मैं भी वैसे ही करता हूँ, आप भी वैसे ही करो. एंजॉय करो. Start somewhere. चलो on this note we end it. Yeah, it was good and मजा आया. मुझे Bye bye. बहुत मजा आया.